శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. శ్రద్ధగా చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలని శరణు కోరుతూ మేము చెప్పినట్లుగా సంకల్పం పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణ మండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస
अर्पणमस्तु। ஸ்ரீபூ நீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா நின் கோவில் வாசல், அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து எங்கும் படியாய்க் கிடந்துன் பவளவாய்க் காண்பேனே. குலசேகர ஆழ்வாரின் அழகான பாசுரம். முடியாளும் மன்னனாகப் பிறந்தும் கலியுகத் தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த எம்பெருமானையே முப்பொழுதும் தரிசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையில் அவரது சன்னதியின் வாயிலில் படியாய்க் கிடக்கும் பாக்கியத்தை வேண்டி பெற்றார். அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு அனிதனமும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி TK லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்போது சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். அதையடுத்து எம்பெருமானின் நித்தியசூரிகளில் முதன்மையாரான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் பின்பு சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. அந்த மந்திர ஒலிகளை இப்போது நாம் கேட்க உள்ளோம். விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் நித்தியசூரிகளில் முதன்மையானவர். ஆழ்வார்களுள் நம்மாழ்வார் விஸ்வக்சேனரின் அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். திருமலையில் திருமலையானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் புஷ்பங்கள் களைந்த பிறகு விஸ்வக்சேனருக்கு சமர்ப்பிப்பது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, எம்பெருமானுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தை முதலில் ஏற்றுக்கொள்பவரும் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர்தான். ஆகவேதான் இவரை சேஷாச்சனர் என்று சொல்வதும் உண்டு. ஸ்ரீமன் நாராயணனின் அந்தரங்க ஆலோசகராக இருப்பதால் இவரது ஆலோசனைகளுக்கு எம்பெருமான் ஒப்புதல் அளிப்பதாக ஐதீகம். பக்தர்களே, இவருக்கு இரு துணைவியர்கள், சூத்திரவதி அம்மையார், ஜெயா அம்மையார். இவர்கள் இருவரும் இவருக்கு அனைத்து விதத்திலும் உறுதுணையாக இருக்கிறார்களாம். ஜெயா வெற்றியையும் சூத்திரவதி அம்மையார் திட்டமிடுவதையும் வழிகாட்டுகிறார்களாம். அதன் பின்பு தொடர இருப்பது புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். கங்கேஷ யமுனேச கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சன்னதிம் குரு என்பதற்கேற்ப சப்த நதிகளும் ஆவாகனமாகியுள்ள அந்த புண்ணிய ஜலத்தை கொண்டு திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் மேடை, அதை சுற்றியுள்ள இடங்கள் இவற்றை புரோக்ஷணம் செய்வதே புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். அதுவும் இப்போது நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, நீராடுவதால் நமது உடல் சுத்தமாகும். பகவானை ஸ்மரிப்பதால் நமது மனது சுத்தமாகும். அவரது திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால் நாக்கு சுத்தமாகும். இப்படியாக நம்மை அனைத்து வகைகளிலும் சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு எம்பெருமானை பூஜிக்க வேண்டும். सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगतिकृतसमन्वितं जियावतं स्वर्गेनं समुत्स्मृतवाहनं पूर्वाजाडोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद. आग्नेयुगिस्मातिजामहे त्वा विश्वेशदात्तं महितो न शम्भो ओ वैराजन्ते जोहदन्निदत्तां प्रयिष्यामदेशो विबुधानामनादर्यामे सस्ताम् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले वुम्बोः. विश्वक्सेनमावाहयामि वुम्बुवः. शान्तमावाहयामि वुं सुवः. हरमावाहयामि वुम्बुर्भवस्वः. अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि. तत्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जिगामावाहयामि. सूत्रपति जिगासमेत श्री विश्वक्सेनस्यासनं समर्पयामि. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः. सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्वा सुस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रजतां प्रजतां प्रजापतिः. श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. श्याम यन्तु घोराणि श्याम यन्तु पापानि श्याम यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि.
अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य गिद्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सदरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिला समेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरणे सर्वोपकरणशुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्येर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जयमेम सरतस्य वीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्म ऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमापवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रमते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ये बह्वे स्तनवो भीतपृष्ठाः तजामदन्तः सदमार्त्येषु वयज्ञस्याममतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः अर्तावरे यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षये पुनाहि मा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेर्ध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वृतकं हितं पावमानीर्तिषन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शितोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनातु तच्छैन्यो रावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्पिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तामुदीत्यां दिश्यापा ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमेषं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्यर्घ्याचमणीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஆராதனமும் புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இனி அடுத்து அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற மங்கள கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார். பக்தர்களே, மங்கள காரியங்கள் யாவும் சுபமான வேளையில் சுப முகூர்த்தத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். அவை தடங்களின்றி நடக்க வேண்டுமானால் 8 திசைகளையும் தேவதைகளாக விளங்கியவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதுவோ அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக விளங்கும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம். ஆகவே அந்த அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களை முதலில் ஆவாகனம் பண்ணி அவர்களை பூஜித்து பின்பு அங்கு வைத்திருக்கும் பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் அட்சதைகளாலும் மந்திரங்களை சொல்லி பூஜைகளை செய்து புதுமண தம்பதிகளின் திருமண வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். இதைத்தான் அங்குரார்ப்பணம். பக்தர்களே, ஸ்ரீ வைகுண்டத்தின் சுகபோகங்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த திருமலைக்கு வந்து சுவாமி புஷ்கரணியில் பகவான் நின்றது எதற்காக? நம் போன்ற பக்தர்களின் குறைகளை தீர்ப்பதற்காகத்தானே. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் சௌலபியன். ஆகவேதான் பொய்கையாழ்வார் தனது பாசுரத்தில் குறிப்பிடுகிறார், கூர்மாவதாரத்தில் ஆமை உருவெடுத்து மகேந்திர மலையை தாங்கி பார்க்கடலில் தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தத்தை எடுக்குமாறு செய்தாய். மூல காரணன் நீ இருக்கும்போது தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு பேர் வரும்படி பண்ணினாய். அதே போல ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் சேத்துவில் அணை கட்டி இலங்கையை அடைந்து ராவணாதிகளை அழித்த நீ அந்த வானரங்களின் துணை கொண்டு அதை செய்ததாக வானரங்களுக்கு அந்த புகழை அளித்தாய். அத்தகைய எளிமை படைத்த நீ, அப்படிப்பட்ட பெருங்குணம் கொண்டவன் நீ என்று போற்றுகிறார். அப்படிப்பட்ட பெருங்குணம் கொண்டவர்தானே நமது திருமலையப்பனும். ஆகவேதான் நம் போன்ற எளியவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி இதோ தினமும் இந்த நித்திய கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் அருள் காட்சி தருகிறார். அந்த எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரட்சைகளுக்கு இதோ இப்போது கிரமமாக பூஜைகள் செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுவதாக ஸ்ரீ வைகானச ஆகமம் சொல்கிறது. வைகானச ஆகமம் விகனச முனி அருளி செய்தது. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆதமணியம் சமர்ப்பயாமி, புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பக ஸ்வஸ்தி தேவ்யதேதிர நர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோ ததாதன ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருथिवी சுச்சேதுனா स्वस्तये वायमब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बद्धेरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्यादिन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारुहेम अम्भोमुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं वनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्. இதே முடிந்தது. இதையடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற உள்ளது. ரக்ஷை என்றால் காப்பு. நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வந்திருக்கும் எம்பெருமானுக்கு எதற்கு இந்த ரக்ஷை? இந்த கேள்வியும் பக்தர்களாகிய நமக்கு எழுகிறது. பக்தர்களே, இந்த ரக்ஷை பகவானுக்கு அல்ல,
அவர்களால் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்களான நமக்குத்தான். அதை பகவான் தானே ஏற்றுக்கொண்டு இதோ உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று அபயம் கொடுக்கிறார். அதுவும் எப்படி? கைங்கரிய பரரான அந்த நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவிர்பவிக்க செய்வதாக வைகானச ஆகமம் கூறுகிறது. பக்தர்களே, நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு இந்த திருமலைக்கு வந்திருக்கும் எம்பெருமானுக்கு அவரது அந்த சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தவே இந்த ரட்சை. சிராவண பௌர்ணமி அன்று வட மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ரக்ஷாபந்தன் என்பார்கள். அப்போது சகோதரிகள் தங்கள் சகோதரனின் கரத்தில் ராக்கி எனப்படும் ஒரு ரட்சையை கட்டுவார்கள். அதாவது அந்த சகோதரன் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்கள் பாதுகாப்பாளனாக ரட்சிக்கிறவனாக இருக்கவார்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை. இங்கே நாம் எம்பெருமானுக்கு இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிப்பதும் எதற்காக? பகவானே, உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லை, நீயே எங்களுக்கு கதி ரட்சை என்பதற்காகத்தானே. இதைத்தான் ஆழ்வார்களும் உண்ணும் உணவும் பருகும் நீரும் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணனுக்கே என்றார்கள். அந்த கண்ணனே நமக்கு தாய், தந்தை, சகோதரன் எல்லாம். தருதுயரன் தடாயேலுன் சரணல்லால் சரணில்லை, அரிசினத்தால் ஈன்ற தாய் அகற்றினும் மற்றவள்தம் அருள் நினைந்தே அழுங்குழவி அதுவே போன்றிருந்தேனே என்கிறார் குலசேகர ஆழ்வார். அதாவது தாய் தன் குழந்தையை தீர்த்தத்துடன் விலக்கினாலும் குழந்தை மறுபடியும் அந்த தாயிடமே ஓடுவது போல உன்னைத் தவிர வேறு யாரும் எங்களுக்கில்லை, பகவானே நீயே எங்களுக்கு கதி என்று சொல்லிக்கொண்டே இந்த ரட்சையை அந்த எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதையேதான் திருமங்கை ஆழ்வாரும் பற்றேல் ஒன்றுமிலேன் பாவமே செய்து பாவியானேன் மற்றேல் ஒன்றறியேன் மாயனே எங்கள் மாதவனே கைல்தேன் பாழ்தொழுகும் கமலச்சுனை வெங்கடவா அற்றே வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கண்டருளே என்று திருவேங்கடமுடையானிடம் சரண் புகும் பாசுரத்தில் பாடினார். அந்த திருவேங்கடமுடையானுக்கு இதோ அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இப்போது நாம் தரிசிப்போம். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு இந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்த பிற்பாடு பிராட்டிமார்களிடம் வரவுள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானின் பட்ட மகிழ்ச்சிகளாக விளங்கும் அந்த தாயார்களுக்கு எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்யும் அந்த எல்லா உபச்சாரங்களையும் பண்ண வேண்டுமாம். தாயார்கள் இருவரும் எம்பெருமானுக்கு இரு கண்களைப் போன்றவர்கள் அல்லவா? செந்தாமரை மலரில் செம்மாந்து வீட்டிருக்கும் செல்வத்தின் அரசி ஸ்ரீதேவி தாயார். அவள் சூரியனைப் போன்று பிரகாசமானவளாம். சுவாமி தேசிகன் தனது ஸ்ரீஸ்துதியில் குறிப்பிட்டதை போல தான் அமர்ந்திருக்கும் எம்பெருமானின் அந்த வக்ஷஸ்தலத்தையே பிரகாசமாக்குகிறாளாம் ஸ்ரீதேவி தாயார். பத்மப்பிரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மதலாயதாட்சி விஷ்ணுப்பிரியே விஷ்ணு மனோனுகூலே என்று அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை நாம் போற்றி மகிழ்வோம். இதோ அடுத்து அருகில் இருப்பவளோ பொறுமையின் பூஷணமான பூமிதேவி தாயார். இவள் சந்திரனைப் போல குளுமையானவள், கருணையை மழையாக பொழிபவள். குழந்தைகளாகிய நாம் எவ்வளவு தவறுகள் செய்திருந்தாலும் அதை பொறுத்து கொண்டு நம் குற்றங்களையெல்லாம் களைந்து நம்மிடம் இருக்கும் நல்லதை மட்டும் பார்க்கும் க்ஷமாதேவி ஸ்வேத வராக மகிஷி. இதோ முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக இதோ சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நமஸ்தேச்சு மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜித்தே சங்கச்சக்கர கதாகஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரை நாம் துதிப்போம். இதோ இதையடுத்து எம்பெருமானின் அத்தியந்த மனோகரி இவளது பூபாரத்தை தீர்க்கத்தான் மகாபாரத போரையே நடத்தினாராம் எம்பெருமான். அந்த பூமிதேவி தாயாருக்கும் இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே,
எம்பெருமானுக்கு கண்களாக திகழும் அந்த 2 தாயார்களையும் நாமும் மனதால் தியானித்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரையும் ஸ்ரீ பூமிதேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவர்களது மணாளனான அந்த எம்பெருமானை கோவிந்தனை நாமும் சரணமடைவோம். முடிவாக இந்த திருக்கல்யாணத்தை நம் போன்ற பக்தர்களின் வேண்டுதலுக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் விக்னங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்க, தடங்கம் இல்லாமல் நடக்க இதோ இன்னொரு சுவாமி அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் கட்டுகிறார். இத்துடன் ரக்ஷா பந்தன வைபவம் இனிதே முடிந்தது. இனி கோவிந்தனின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள். எந்த மங்களகரமான விஷயங்களும் அக்னியை முன்னிட்டு நடைபெறுவது நமது சம்பிரதாயம் அல்லவா? எம்பெருமானே யக்ஞ புருஷன், அவனே அக்னி ஸ்வரூபன். ஆகவே அந்த எம்பெருமானை இதில் ஆவாகனம் பண்ணி இதோ ஹோம காரியங்களை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. शुद्ध आशीर्वान् ममक्त इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्य सोम्यः इंद्र शुद्धो हिनोरयं शुद्धोर्त्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं सुदासते मयि देवाद्रविणमाजिदन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः पूर्वेरिष्टास्यामधर्वासुवीराः मह्यं यदिन्तु ममयान हव्याकूतिः सत्यावनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभूजतामे देवीश्वरर्वेरुनक्नोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं माहास्महि सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य वेद यः सिञ्चतपसो यद्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निघृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादृतो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिता यक्षिदेवाने अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवः सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि ओं भव प्रजापतिमावाहयामि ओं समपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः ईदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरङ्करमण्यं ददातु सादन्यं विदत्यकं सुभेगं तस्त्रवणं योधराज तस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सुवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य ईदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपुनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवोग्रे गुवोग्रे इमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञमिदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवादं यच्चा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्चा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणय को वप्रणयत समप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं वदन्ते एर्गतपुष्टापदागुस्सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतेः को वो जिनक्तु सवो जिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषः पात्राणि देवयित्याये प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनिर्ववामि ब्रह्मणेष्ठनिर्ववामि इन्द्रायष्ठनिर्ववामि अग्नेयष्ठनिर्ववामि सोमागिष्ठनिर्ववामि अग्नेयष्ठनिर्ववामि सोमागिष्ठनिर्ववामि अग्निशोमाभ्यां दिष्ठनिर्ववामि प्रजापतिष्ठनिर्ववामि ब्रह्मणेष्ठनिर्ववामि इन्द्रायष्ठनिर्ववामि वसुभ्योष्ठनिर्ववामि मृद्भ्योष्ठनिर्ववामि रुद्रेभ्योष्ठनिर्ववामि
आपापूपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्वभामि बृहत्त्रये दृष्टिर्वभामि मित्राय दृष्टिर्वभामि वरुणाय दृष्टिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्वभामि अश्विभ्यां दृष्टिर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्वभामि कक्षाय दृष्टिर्वभामि कक्षदेवत सोमाय दृष्टिर्वभामि वैवाहिका यज्ञाय दृष्टिर्वभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्वभामि आद्यं तृप्तिस्त्रियामि तृप्तिस्त्रियामि अग्ने द्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतपशवारुणमसि अन्तरिदग्मर्क्षोऽन्तरिदा आराधयो पहता वृद्धिरपहदं पापं कर्मापहदं पापस्य पापकृतं पापं कर्मयो न पापं कर्मजगे चित्प्रत्यगेन मृच्छा ओम चित्प्रतिस्थापना तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्तानविदापना तच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षत आच्युतिर्भिर्मामे क्लिष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च नियुधञ्च प्रयुधञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्च अन्तश्च प्रार्थश्चेमामे क्लिष्टगाधेनवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्तस्वजेत वर्तयिदास्मान् प्रजयापशब्रह्मवर्त्यसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा वैवाहिक यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याचुरं सावित्र्या गृहीत्वा ऋक्मां व्याहृतेर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्चमकर्माङ्गमोपासनाग्नवाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओं मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गिद्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जागृभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः इमान् त्वमिन्द्रमेध्वस्तु पुत्रागं सुभगां कुरु दशास्यां पुत्रानाथेः पतिमेकादशं कृधि संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमपकल्पमानमपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुप्रभानाभान् सम्भाणे ज्योतिष्मागस्तेजस्मा नादमग्यस्तपन्नभितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे ओम श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः ओम विद्युत्कोटिदिवाकरापमुनिशं शङ्कं कदापङ्कजं चक्रं बिभ्रति इन्दिरा वसुमतिः संशोभिपार्श्वद्वयं केयूराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभं
दीप्तं विश्वधरं विभुं सुमक्ष विलसत् श्रीवत्सरिह्नं भजे अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजनोघस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावर्णैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते किशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्विवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलमलगिते लवणेक्षुसुरा सर्पितधिक्षीरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारति किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वयेतुकमालक हिरण्यकरमणक कुरुवरजाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि चायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकुमारवार्तकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशा परेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाक लोहितधामा तपसङ्घातकालसूत्रादिविविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधाने एकैकतरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृताग्निष्टोम अधिरात्राप्तोर्यामशान्तमनवाजपेजपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्यसामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधमोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः श्रीमिखनोमणीन्द्रमदानुसारिभिर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः रिक्तकुक्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानसभगवतशास्त्रप्रकारेण आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय
ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवण आप्नुवान् औरवैन्द्रवञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यपतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்யாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை இப்போது மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து பின்பு எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மஞ்சள் குங்குமம் அர்ப்பித்து புஷ்பங்களால் அலங்காரம் செய்து பூஜை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மகாபாரத போரின் முடிவில் அம்புப்படுக்கையில் இருந்து கொண்டே பீஷ்மர் ராஜநீதி சம்பந்தமாக யுதிஷ்டருக்கு சொன்ன கதை இது. ஒரு ஊரில் ஒரு குளம். அந்த குளத்தில் நிறைய மீன்கள் இருந்தனவாம். அதில் 3 பெரிய மீன்கள். இந்த 3 மீன்களுக்கும் வெவ்வேறு விதமான விசேஷத்தன்மை உண்டு. முதல் மீனின் பெயர் தூரதர்ஷி. இதன் இயல்பு என்னவென்றால் எதிர்வரும் ஆபத்துக்களை உணர்ந்து முன்னெச்சரிக்கையோடு தன்னை காத்துக்கொள்ளும். இரண்டாவது மீன் பிரத்யுன்மதி. இது ஆபத்தான சமயம் வரை காத்திருந்து மிகவும் சிரமப்பட்டு தக்க உபாயத்தை கண்டுபிடித்து தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ளும். மூன்றாவது மீனின் பெயர் தீர்க்கசூத்ரி. இது யார் பேச்சையும் கேட்காமல் வலுவில் போய் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும். ஒரு நாள் சில வலைஞர்கள், அதாவது மீன் பிடிப்பவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். அந்த குளத்தை சுற்றி ஒரு வாய்க்கால் அமைத்து அதன் மூலம் தண்ணீரை வடிய வைத்து குளத்தில் நீர் குறைந்ததும் வலை வீசி மீன்களை பிடித்து விடலாம் என்று பேசிக்கொண்டனராம். இது அந்த 3 மீன்களுக்கும் தெரிய வந்தது. உடனே தூரதர்ஷி மீன் மற்ற மீன்களை கூப்பிட்டு, நமக்கு ஆபத்து நெருங்கிவிட்டது, இவர்கள் நம்மை பிடிப்பதற்கு முன்னால் இவர்கள் வெட்டும் அந்த வாய்க்கால் வழியாக வெளியேறி வேறு இடத்துக்கு போய்விடலாம் என்றதாம். அதற்கு இரண்டாவது மீனான பிரத்யுன்மதி, அதற்குள் என்ன அவசரம், இவர்கள் வெட்டும்போது பார்க்கலாம், ஏதாவது வழி தோன்றாமல் போகாது என்றதாம். மூன்றாவதான தீர்க்கசூத்ரி, இதெல்லாம் வீணான பயம், இதெல்லாம் யோசித்து காலத்தை வீணடிக்காமல் நாம் சந்தோஷமாக இருப்போம் என்றதாம். மறுநாள் கால்வாய் வெட்டும் வேலையை ஆரம்பிக்க முதல் மீனான தூரதர்ஷி அந்த கால்வாய் நீருக்குள் புகுந்து வெளியேறிவிட்டது. நீர் குறைந்ததும் அவர்கள் வலை வீசி அதில் மீதி மீன்களை பிடித்ததும் அதில் இந்த பிரத்யுன்மதியும் சிக்கியதாம். ஆனால் அது சாமர்த்தியமாக அந்த வலையின் கயிற்றை வாயினால் கவ்விக்கொண்டு பிடிபட்டதை போல கிடக்க மீன் பிடிப்பவர்கள் அந்த வலையோடு நல்ல நீருள்ள இடத்துக்கு சென்று சுத்தம் செய்ய தொடங்கினார்களாம். அப்போது பிரத்யுன்மதி சிரமப்பட்டு அந்த கயிற்றை வாயிலிருந்து எடுத்துவிட்டு அந்த நீரில் தாவி தப்பித்து ஓடியதாம். இதை அந்த செம்படவர்கள் கவனிக்கவில்லை. மூன்றாவது மீனான தீர்க்கசூத்ரி பயத்திலேயே உணர்விழந்து மடிந்து போனதாம். பக்தர்களே, இது மீன்களுக்கு மட்டுமல்ல, மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும். துன்பம் வருவதற்கு முன்னாலேயே அதற்கான வழியை அறிந்து செயல்படுபவன் அதை வெல்கிறான். எவன் ஒருவன் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைக்கிறானோ அவன் மிகுந்த கஷ்டங்களை அனுபவித்து பின்பு சுகம் பெறுகிறான்.
எவன் யார் பேச்சையும் கேட்காமல் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று வீணான கேளிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறானோ அவன் முடிவில் எதையும் சமாளிக்க முடியாமல் ஏன் சில சமயம் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் முடிவுக்கு கூட தள்ளப்படுகிறான். ஆகவேதான் பெரியோர்களின் நல் உபதேசங்களை கேட்டு நமது வாழ்க்கையை ஒரு ஒழுக்கத்துடன் கடைபிடிக்குமோனால் நம்மை எந்த கஷ்டங்களும் அண்டாது. அப்படியே அண்டினாலும் பகவான் நம்மை கைவிட மாட்டான். ஆகவே நாமும் இதோ இந்த எம்பெருமானின் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் இந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்வோம். அந்த பகவானை பிரார்த்திப்போம். எங்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டு என்று வேண்டிக் கொள்வோம். அது மட்டுமல்ல, ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு சொல்லி இருக்கும் அந்த வழிகளின்படி நாம் நடந்து கொள்வோம். அப்போதுதான் எம்பெருமானுக்கு பிரியமானவர்களாக நாம் ஆவோம். எம்பெருமான் நம்மிடம் எந்தவிதமான பேதங்களையும் பார்ப்பதில்லை. அவன் ஏழை, பணக்காரன், நல்லவன், கெட்டவன், மதம், ஜாதி எதுவும் பார்ப்பதில்லை. அவன் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான், அதுதான் பக்தி. அந்த பக்தியை கொண்டு அந்த எம்பெருமானை நெருங்கினோமானால் அந்த எம்பெருமான் நம்மை கைவிட மாட்டான் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் அதுவே போதும். ஆகவேதான் இதோ இந்த திருமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் அனைவரும் கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை பஜித்து கொண்டு இருகரம் கூப்பிக்கொண்டு இந்த எம்பெருமானின் தரிசனத்துக்காக ஓடோடி வருகிறார்கள். ஏன்? இந்த எம்பெருமான் நம்மை காப்பான், வேண்டியதை தரும் வெங்கடேசன் இங்கிருக்க நமக்கெல்லாம் ஏது குறை என்று அந்த வெங்கடேசனை நாமும் இருகரம் கூப்பித் தொழுவோம். நம்மாழ்வார் சொன்னது போல புகழின்றி உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளை நாம் கெட்டியாக பற்றி கொள்வோம். அந்த திருவடிகளை பற்றி கொண்டவர்களை எம்பெருமான் ஒருபோதும் கைவிட்டதே கிடையாது. கோவிந்த நாம ஸ்மரணம் ஜன்ம பாபஹரணம் என்பார்கள். அதுபோல கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளை கெட்டியாக பற்றி கொள்வோம். பகவான் நம்மிடம் சொல்வது என்ன தெரியுமா? நீ என்னை பார்க்காதே, எனது திருவடிகளைப் பார், திருவடிகளைப் பார் என்று காட்டுகிறார். அதைத்தான் திருவேங்கடவன் நமக்கு இதோ இப்போது கூட காட்டிக் கொண்டிருப்பது தனது திருவடிகளைத்தான். ஆகவேதான் அந்த திருவடிகளை சேவித்து அவரிடம் பக்தி கொள்வோம். அந்த எம்பெருமானை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக தாயார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க அதோ அர்ச்சக சுவாமி தயாராகிவிட்டார். प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवान्। श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री। भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसि अथोत इन्द्रः केवलीर्विषो बलिहृतस्करत्। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఒరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి ఒరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు పరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు ఎరగవు నీ మహిమను ఏమనేమో నిన్నును ఎరగవు నీ నమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజాం ముంచత మృత్యుపాశాత్ తదయకం రాజా వృణో నమన్యదాం యథేయక స్త్రీ పౌత్రమకన్రోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారః పతిం దీర్ఘమాయుః అసూన్యోపస్థానీపదామస్తు మాతా పౌత్రమానందమవిప్రబుధ్యతాం యజ్ఞ స్వాహా ఇమం మే వృణస్రుతిహమద్యాచ మృణయా త్వామవశ్యరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహా తున్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపయాసచేష్టాః యజిష్టోపన్హితమస్సోషిడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్పన్నో అగ్నే మమ భవో తేనేదిష్టో అస్యావశతో వ్యుష్టౌ అవజక్ష్మణ వర్ణకం మృడానో వేహిమృడేకం దహవో నయేధి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా హితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహి భేషటగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సువ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిద ప్రసుభాయమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా భూతాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇమా అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతే క్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సువ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః
वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुभा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो प्रदानि स्पृशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिवे चक्षुरादरग स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्र मम पदग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्राधावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ कर्म सात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्तु होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसुभा ॐ यदस्य कर्मणोत्यरेदजं यद्वान्योनिभाकरम् अग्निश्वस्विष्टकृत्वान् सर्वगस्विष्टकं दहनं करोत स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दुहदहुदाहुतीनाङ्कामाना समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमविष्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तुनराः जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निशिक्षुधात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्वराय चक्षुरादित्तमक्ष स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदंत्रिष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौराध्ये स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋध्ये स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्ध्ये स्वाहा येधोस्येति क्षेमहि स्वाहा समितशितेजोषितेजोमयितेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदेग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापनस्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषादि वनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषादि वनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविना कृतेन समादत्येरवसमिः सम्मरुद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधमस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव तृप्यन्तां मेदक्षपितृप्यता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमितप्राधावेः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा संहितास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा तदसि मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा ज्येष्ठाः वरजिष्ठागस्वरेष्ठोग्रं वजो अपावधीन् त्वेषं वजो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं मादि एकवर्धमत्रमेधामश्मन् पृथिव्यादिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिपणया दक्षिणतः परिधिपणया उत्तरतः परिधिपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विश्रुत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषधयो मरुतां पृषदगिस्ततिमङ्गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम्
आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भातिगते हरः उशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मय मेधामय प्रजामय यज्ञस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्रयन्द्रयन् दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधातु वोञ्च मे सुरश्च मे जिग्नोपचते नमस्यायत्ते न्यूनं तस्मै ता उपायत्येतिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा जरतं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडद्धहारमुपाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलितवों नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पदासनाय कृतं तमयादेव परिपूर्णं तदुस्तुते प्रागश्चित्तानि शेषानुहमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पातिर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आच्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणम् अस्तु எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அரியமா புரந்தரி முதலான தேவதைகளை முன்னிட்டு கொண்டு நடைபெறும் லாஜஹோமம், அதைத் தொடர்ந்து ஹோமங்களை பூர்த்தி செய்யும் வண்ணம் பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாய் நல்லார் நல்ல மறையோதி மந்திரத்தால் பாசிலை நாணல் படுத்து பருதி வைத்து காய்சின மாக்களிர் அண்ணானென் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கனாக்கண்டேன் என்று பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பைங்கிளியான கோதா பிராட்டி எம்பெருமானையே மணாளனாக வரித்து அவரோடு தனக்கு நடக்கின்ற கல்யாண வைபவத்தை கனவில் கண்டு அதை தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அதை இந்த தேங்காய் உருட்டும் வேளையில் பாராயணம் செய்ய அர்ச்சக சுவாமியும் அன்னமாச்சாரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்து கொண்டு இந்த மங்கள நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள். அடுத்து நிகழப்போகும் நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். பக்தன் ஒருவன் கூடையில் தேங்காய், வாழைப்பழம், கற்பூரம் ஆகியவைகளை எடுத்துக்கொண்டு கோவிலுக்கு சென்றானாம். இதில் தேங்காய் பேசிதாம், நாம் மூவரில் நானே கெட்டியானவன், பெரியவனும், ஆகவே எம்பெருமானுக்கு படைப்பதில் நான் தான் உயர்ந்தவன் என்றதாம். அடுத்து வாழைப்பழம், அப்படி பார்க்க போனால் நான் இளமையானவன், மென்மையானவன், இனிமையானவன், என்னைத்தான் முதலில் ஏற்றுக்கொள்வார் பகவான் என்றதாம். கற்பூரம் ஒன்றும் பேசவில்லை. சன்னதிக்கு போனதும் பக்தர் அந்த கூடையை அர்ச்சகரிடம் கொடுத்தார். அர்ச்சகர் முதலில் தேங்காயை கொண்டு போய் கல்லின் மேல் அடித்து பளீர் என உடைத்தார். தேங்காய் உடைபட்டது. அடுத்து வாழைப்பழத்தை எடுத்தார். தோலை உரித்து மூலையில் எறிந்தார். பின் கற்பூரத்தை ஏற்றினார். அது ஒளி கொடுக்க அந்த ஒளியில் பகவானின் முகம் பிரகாசமாக தெரிய பக்தர்கள் அனைவரும் தங்கள் கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டு பகவானை தரிசித்தார்களாம். பக்தர்களே, இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன? தேங்காயைப் போல கர்வப்பட்டால் உடைந்து போவோம். வாழைப்பழம் போல தற்பரமை பேசினால் கிழிபடுவோம். கற்பூரம் போல அமைதியாக இருந்தால் இருக்கும் வரை ஒளியை தந்துவிட்டு பின்பு பகவானோடு கலந்து விடுவோம். பக்தர்களே,
அதைத்தான் நமக்கு இது காட்டுகிறது. இதோ இப்போது நாமும் எம்பெருமானிடம் என்னுடையது என்று எதுவும் இல்லை, எல்லாம் நீ போட்ட பிச்சை என்று அவனிடம் கரைந்து உருகுவோம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் சூடிய புஷ்ப மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு சேர்த்து அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அவளது மணாளனான கோவிந்தனிடமே வந்து சேர்ந்தது. அடுத்து அதே மாலை பூமிதேவி தாயாருக்கும் சென்று அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் எம்பெருமானிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து தேவிகள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை பெற உள்ளோம். இதோ அர்ச்சகருக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.